ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دیورانی کا حمل ہی نہ ٹھہرتا تھا۔ سب کہنے لگے تھے وہ بانجھ ہے۔ تنگ آ کر ایک دن دیورانی شتر مرغ کا انڈا لے آئی اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ بولی بھابھی میں جانتی ہوں یہ گناہ ہے، پر میں مجبور ہوں، جبکہ میں تو کچھ سمجھی ہی نہ تھی۔ کچھ دن بعد ہی دیورانی حاملہ ہو گئی اور روزانہ چیک اپ کروانے ہسپتال جانے لگی۔ میں بھی اس کا بہت خیال رکھتی۔ جب ایک دن وہ باتھ روم گئی تو میں اس کے بیڈ کی چادر درست کرنے لگی۔ میرا دل بند ہوا جیسے ہی چادر بیڈ سے اتاری، کیونکہ اس نے چادر کے نیچے 4 مردانہ۔ میرا نام عروج ہے، میری عمر 30 سال ہے، لیکن میری یہ کہانی تب سے ہے جب میں 10 سال کی تھی، یعنی آج سے 20 سال پہلے سے میں یہ کہانی سنا رہی ہوں۔ میں اس وقت ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ امی ابو اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، پر میرے خواب کافی بڑے تھے۔ مجھے یہ گاؤں بالکل بھی پسند نہ تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کسی دوسری نگری اڑ جاؤں۔ میں ہر وقت خواب دیکھنے والی لڑکی تھی اور کہانیاں پڑھتی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ اس زمانے میں کہانی خرید کر ہی زمانے کی تلخیوں کا پتہ چلتا تھا۔ ان کہانیوں کی وجہ سے میرے خواب کافی اونچے ہوتے گئے تھے۔ امی بھی مجھے سارا دن کہانی پڑھنے پر کوستی تھیں۔ میری دوستی ایک گاؤں کے سردار کی بیٹی سے تھی، جو کہ کافی اچھی تھی اور بہت سمجھدار تھی۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، پر میری دوست جس کا نام نمرا تھا، اس کے اندر کوئی غرور نہیں تھا۔ وہ میری کافی مدد کرتی تھی اور ہمیشہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میرے اندر دولت کا کافی غرور ہوتا۔ یہی سوچ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ اسی وجہ سے شاید یہ دولت مجھ سے دور ہے، پر میں سکون کو دولت پر ترجیح دیتی تھی اور اپنے خواب و خیالوں والی زندگی ہی مجھے پسند تھی۔ میں ہر حال میں شکر ادا کرتی تھی۔ نمرا جیسی دوست ہونا میری زندگی کی سب سے اچھی بات تھی۔ میں زیادہ تر اس کے گھر ہی رہتی تھی۔ وہ مجھے کافی اچھی کہانیاں دیتی تھی۔ امی مجھے منع کرتی تھی کہ میرا اور اس کا کوئی میل نہیں، میں کہاں اور وہ کہاں، میں اس کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ اس کڑوی باتوں کی وجہ سے میں امی سے روٹھ جایا کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ نمرا میری دوست اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی ایسی سوچ نہیں۔ امی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے نمرا کے گھر جانے سے روک سکے، کیونکہ میں ان کا سارا کام کر کے جایا کرتی تھی اور پہلے سے تسلی کرتی تھی کہ امی کا سارا کام مکمل ہو جائے، ورنہ امی مجھے اس بہانے سے جانے کے لیے روک بھی سکتی تھیں۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور میرا زیادہ کھانا پینا بھی نمرا کے گھر ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ نمرا کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ اس کے 2 بھائی تھے، ایک علی اور چھوٹا عمر۔ علی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ عمر کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ میں نے نمرا سے اس بات کی وجہ پوچھی تو وہ بتانے لگی کہ علی کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی، جس وجہ سے وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ عمر کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے ہو رہی ہے۔ وہ شہر میں اس کے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوئی اور اسے چھیڑنے لگی کہ تم بھی کسی کو پسند کر لو تاکہ تمہاری بھی شادی ہو جائے، پر وہ یہی کہتی تھی کہ وہ امی ابو کی پسند سے شادی کرے گی۔ اس وقت ہم 18 سال کے ہو گئے تھے۔ امی نے بھی مجھے اب باتیں سنانا شروع کر دی تھی کہ میں بڑی ہو گئی ہوں اور اس طرح ان کے گھر پر رہنا اچھی بات نہیں، کیونکہ ان کے گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں۔ پر میں امی کو تسلی دیتی کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ امی اس بات پر ہنس دیتی تھی کہ بھائی صرف سگے ہوتے ہیں اور مجھے بچ کر رہنا چاہیے تاکہ کل کو کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جن سے ان کی عزت پر آنچ آئے۔ نمرا کے گھر میں خوب شادی والا ماحول ہوتا تھا، مجھے بھی کافی مزہ آتا تھا۔ میں نے نمرا کو کافی فورس کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی پر ڈانس کرے، لیکن وہ منع کرتی تھی کہ اصل میں بڑے بھائی نے منع کیا ہے۔ اس پر میں نے اسے کافی فورس کیا کہ بڑے بھائی کا کیا کام ہے کہ وہ اسے منع کرے، جب وہ کہنے لگی کہ بھائی کو ڈانس سے کافی الجھن ہے۔ یہ بات سن کر میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ ڈانس کرے گی اور اس طرح ہم دونوں مل کر ڈانس کریں گی تو اس کے بھائی کو ایشو نہیں ہوگا، اور اگر ایشو ہوگا بھی تو میں سنبھالوں گی۔ نمرا کافی مشکل سے میری بات مان گئی اور میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ڈانس کرنا مجھے بہت پسند تھا۔ میں نے نمرا کو بھی کچھ سٹیپ سکھا دیے تھے۔ اس کے اندر یہ ڈر تھا کہ اس کے بڑے بھائی کو پتہ نہ چل جائے، پر میں نے اسے تسلی دی کہ عورتوں والی سائڈ پر ان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ مہندی والی رات جیسے ہی ہم دونوں نے ڈانس کیا تو سبھی بہت خوش تھے۔ نمرا کا بھائی عمر بھی بہت خوش ہوا، پر اچانک ہی ہم جس میوزک پر ڈانس کر رہے تھے وہ میوزک بند ہو گیا اور ہمارا ڈانس رک گیا تھا۔ یہ کام علی نے کیا تھا۔ اب نمرا کے ہوش اڑ چکے تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، پر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں اسے بچاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نمرا کو بیچ میں نہیں آنے دوں گی۔
اس کے بھائی نے سب کے سامنے اسے سنایا تو میں نے اس کے بھائی کے سامنے آ گئی اور پہلی مرتبہ اس سے ہم کلام تھی۔ اس سے کہنے لگی کہ نمرا کی اس میں بالکل کوئی غلطی نہیں اور ہم نے کون سا واہیات ڈانس کیا ہے، صرف مہندی کے حوالے سے ہی کچھ سٹیپ کیے تھے۔ اس کے بھائی نے مجھے جواب دینا پسند نہ کیا اور نمرا سے کہنے لگا کہ وہ مجھے واپس جانے کا کہے، نہیں تو وہ نمرا سے ناراض ہو جائے گا۔ میں اس کے کہنے سے پہلے ہی واپس چلے گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائی بہن کے بیچ میں میری وجہ سے کوئی بھی تلخ کلامی ہو جائے۔ امی نے گھر آتے ہی مجھے الگ ڈانٹا تھا کہ میں آج کے بعد نمرا کے گھر بالکل بھی نہیں جاؤں گی، پر میں جانتی تھی کہ ان کا غصہ عارضی تھا اور کچھ دیر کے بعد چلا جائے گا، اور وہی ہوا تھا۔ نمرا نے مجھے دوبارہ بلایا تھا اور اپنے بھائی کی وجہ سے مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی۔ کہنے لگی تھی کہ بھائی اتنے سخت نہیں ہیں، بس انہیں یہ عجیب نمائشی چیزیں پسند نہیں۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد شادی کے فنکشن ختم ہو گئے تھے۔ ان کی وہ بھابھی شہری تھی اور کافی ماڈرن تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ سب اس کی مانیں اور اس کی سنیں۔ نمرا اس سے تنگ آ گئی تھی اور میرے سامنے یہی کہتی رہتی تھی کہ اب وہ اپنے علی بھائی کی شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کروائے گی۔ میں بھی سمجھ آتی کہ وہ سچ میں اپنی چھوٹی بھابھی سے تنگ آ گئی ہے، لیکن وہ بھی سچی تھی۔ ایک دن نمرا نے مجھے اپنے گھر بلایا اور کہنے لگی کہ اسے کسی سے ملوانا ہے۔ میں سمجھ نہ سکی کہ اس نے مجھے کس سے ملوانا ہے، پر جب میں نے سامنے اس کے بڑے بھائی کو دیکھا تو شوق ہو گئی۔ میں نمرا سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن وہ کہنے لگی کہ اس کی خواہش ہے کہ میں اس کی بڑی بھابھی بنوں۔ وہ مجھ پر وقفے سے اپنی باتوں سے بم گرا رہی تھی اور میں شوق ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بھائی کا یہ حال بالکل نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب جانتے ہیں۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب علی نے مجھ سے بات کرنا شروع کی، انہوں نے پہلے تو اس سب کے لیے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ وہ کچھ زیادہ روڈ ہو گئے تھے، لیکن وہ اس چیز کے سخت خلاف ہیں کہ گھر کی عزت سب کے سامنے نمائش کرے، اور میں نمرا کے ساتھ تھی، اس لیے جیسے نمرا کی عزت ان کے لیے عزیز تھی ویسے ہی میری بھی عزت قیمتی تھی۔ مجھے یہ جان کر اچھا لگا تھا اور میں اندر ہی اندر شرمندہ ہوئی تھی کہ میں علی کو زیادہ ہی کھڑوس سمجھتی تھی، پر وہ دل کے اچھے انسان تھے۔ اب وہ اہم بات کی طرف آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ نمرا کی ضد تھی کہ وہ یعنی کہ علی مجھ سے ملے، وہ چاہتی ہے کہ علی مجھ سے شادی کرے۔ میں یہ سن کر شوق ہو گئی تھی، پر علی نے بات ختم نہیں کی تھی اور کہنے لگے کہ گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے پورے رسم و رواج کے ساتھ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے گا۔ مجھے بہت شوق لگا تھا کیونکہ نمرا اور میری گہری دوستی تھی، پر میں اس دوستی سے زیادہ کچھ نہیں سوچتی تھی۔ میں واپس گھر چلی گئی تھی اور میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر امی بھی جان گئی تھیں کہ ضرور کوئی بات ہے جو میں اتنی چپ چپ رہنے لگی ہوں۔ میں انہیں یہ بات نہ بتا سکی۔ اس دن کا ویٹ کرنے لگی جب نمرا نے مجھے اپنی بھابھی بنانے آنا تھا، اور آخر وہ دن بھی آ گیا اور نمرا اپنے بھائی کے ساتھ میری بات پکی کرنے آ گئی۔ میری امی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات سچ ہے۔ وہ شوق میں تھیں۔ کچھ دن کے بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میری علی کے ساتھ اتنی بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ سبھی گاؤں کے رواج کے خلاف تھا۔ سبھی بہت خوش تھے سوائے نمرا کی چھوٹی بھابھی کے۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی جیٹھانی بنوں۔ اس کا موڈ بھی آف ہو چکا تھا اور نمرا نے اب ٹھان لیا تھا کہ وہ مجھے اپنی بھابھی اور اس کی جیٹھانی بنا کر ہی دم لے گی تاکہ اس کا روب گھر والوں پر کم ہو سکے۔ کچھ دن کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میں نے امی اور باقی گھر والوں کو الوداع کہا اور اپنے سسرال چلے گئی۔ نمرا نے خوشی خوشی میرا استقبال کیا تھا اور علی کے ساتھ مجھے بھی مبارکباد دی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نمرا کے ساتھ بہت اچھا رہوں گی اور زندگی کے ہر موڑ میں اس کا ساتھ دوں گی، اس کی حفاظت کروں گی، اس کی بھابھی کم اس کی بہن زیادہ بنوں گی۔ ہماری شادی کافی اچھی چلنے لگی تھی اور علی مجھے بہت اچھے طریقے سے جاننے لگے تھے۔ مجھے بھی انہیں جاننے میں مشکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ اچھے انسان تھے اور اپنے کام اور کریئر کو لے کے کافی سیریس تھے، لیکن وہ مجھے اور اپنی فیملی کو بھی وقت دیتے تھے۔ میری اب اپنی دیورانی کے ساتھ اتنی نہیں بنی تھی۔ اس کا نام روشانہ تھا اور وہ کافی خوبصورت تھی، لیکن خوبصورتی کتنی ہی زیادہ ہو جائے وہ سیرت سے بازی نہیں لے سکتی۔ انسان کا اخلاق ہی اس کی پہچان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس خاندان کو اپنی بری پہچان دکھا چکی تھی اور اب اسے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے اس کی جگہ لے لی ہے، پر میں ہمیشہ اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی تھی تاکہ ہماری اچھی بن جائے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ عمر بھائی جتنے اچھے تھے وہ اتنی ہی الٹ تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں امید سے ہوں۔ اس وقت عمر کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، پر میری دیورانی امید سے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کافی چیک اپ کروایا، پر وہ اس چیز پر بھی موڈ بنا لیتی تھی کہ اس بات پر میں نے سبقت لے لی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، بس اسے صبر سے کام لینا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ نمرا بھی میری خبر سن کر کافی خوش تھی اور مجھے مبارکباد بھی دی تھی اور مجھے احتیاط برتنے کا بھی کہتی تاکہ مجھے نظر نہ لگ جائے۔ علی اس کے لیے ایک اچھا لڑکا تلاش کر رہے تھے تاکہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔
लेकिन निम्रा मना कर देती थी कि उससे अभी शादी नहीं करनी है और आने वाली जान के साथ कुछ वक्त गुजारना है। इस पर अली उसे समझाते थे कि शादी के बाद वो पराई नहीं होगी, बल्कि ये उसका अपना घर होगा और वो जब चाहे तब आ सकती है। उसके लिए एक अच्छा लड़का ही तलाश किया जाएगा। कुछ ही जुस्तजू के बाद वो मान गई और अली ने अपनी कोशिश जारी कर दी थी। इन्हीं दिनों में मेरी देवरानी को भी हमल हो गया। वो काफ़ी खुश हो गई थी और उससे खुश देखकर मैं भी सुकून में आ गई थी कि उसका ध्यान अब मेरे ऊपर से हट जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसका हमल गिर गया था, उसे चौथा महीना था और अचानक ही उसे दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। इस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि सब निम्रा के ससुराल गए हुए थे और निम्रा भी अपनी एक सहेली के यहाँ गई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत मुश्किल से उसे पास एक दाई के घर लेकर गई क्योंकि मेरी हालत भी इस वक्त सही नहीं थी। इस दाई ने देवरानी को चेक किया और अफसोसनाक खबर सुनाई कि इसका हमल गिर गया है। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था और देवरानी भी रोने लगी। मैंने घर वालों को खबर देने का सोचा और उसे छोड़कर वापस घर आ गई। वो इस दाई के पास ही थी। मुझे घर पहुंचते हुए तकरीबन 20 मिनट लगे थे और सब लोग वापस आ गए थे। मैंने सबको बताया तो वो अफसोस करने लगे। उमर को भी काफ़ी दुख हुआ था कि वो एक दफ़ा फिर से बाप बनने से महरूम हो गया। अली ने उसे दिलासा दिया कि कुदरत की इसी में बेहतरी होगी। कुछ ही देर बाद मेरी देवरानी अच्छे मूड के साथ घर में दाखिल हुई और उसका पेट पहले जितना था जैसे ये सब कुछ नहीं हुआ था। सभी उससे पूछने लगे कि वो इतना खुश क्यों है। जब उसने बताया कि दाई को गलत फहमी हुई थी और वो बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी ठीक है, मैं शौक हो गई थी। फिर उससे पूछा कि अगर ये सब सच है तो इसकी तबीयत को क्या हुआ था। इस पर उसने कहा कि दाई का कहना था कि इस हालत में अमूमन तबीयत खराब हो जाती है, तो घबराने वाली बात नहीं थी। उमर भी खुश हो गया, पर मैं शौक हो गई थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो सच ही कह रही थी, इसलिए मैं भी उसकी बात मान गई। निम्रा को भी अजीब लगा था, पर वो भी चुप थी। अब वो हंसी खुशी इसी हालत में फिरती रहती। उसका पेट देखकर मुझे अजीब लगता था। मेरा वक्त करीब आ गया था और कुदरत ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा था। सब लोग ही खुश हो गए थे। अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सबसे ज्यादा खुश था और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा कि मैंने उसे बाप जैसे कीमती तोहफे से नवाजा है। मेरी देवरानी का मूड इन दिनों अजीब सा होने लगा था। मुझे हैरानी हुई कि ये सब वो क्यों कर रही है, पर मैं चुप थी। एक दिन मुझे उसके रूम में किसी काम से जाना पड़ा। जब वो वॉशरूम में थी, मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी। इस वजह से मैं बेड पर बैठ गई। अचानक ही मुझे एक फुटबॉल की तरह कुछ महसूस हुआ। मैंने देखा तो शुतुरमुर्ग का अंडा था। इतना बड़ा अंडा मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। मैं काफ़ी शौक हुई थी और सोचने लगी कि देवरानी ये सब क्यों कर रही है, इस अंडे से उसका क्या लेना देना। इतने में वो वॉशरूम से बाहर निकली और उसने मुझे देखा तो शौक हो गई थी क्योंकि मेरे हाथ में अंडा था। उसने मुझसे अंडा ले लिया। मैंने नोट किया था कि उसका पेट कम लग रहा था। मुझे शौक लगा था। मैंने उससे पूछा कि वो इस अंडे का क्या करती है, जबकि वो कहने लगी कि किसी ने उसे बताया था कि हमल के लिए अंडे का इस्तेमाल करें। मैं शौक हो गई थी, ये कैसी बात है। पर वो कहने लगी कि ये सब करना गुनाह है, पर मुझे सबको दिखाने के लिए सब करना होगा। अब मैं जान गई थी कि वो इस अंडे का फ़ायदा ले रही है और सबको दिखा रही है कि वो उम्मीद से है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मेरे सामने इस अंडे को फिट किया था ताकि वो हामला लग सके। मेरे पसीने छूट गए थे। मैंने फैसला किया था कि सबको बता दूंगी, पर उसने मुझे धमकी दे दी थी कि वो मेरे बेटे को इस सूरत में नुकसान पहुंचा देगी अगर मैंने घर में से किसी को भी इस झूठ के बारे में बता दिया। मैं उसकी इस धमकी से डर गई थी। मुझे अपनी औलाद से काफ़ी प्यार था और अभी चंद माह का था। मैं काफ़ी सहम गई थी और उसे कहने लगी थी कि वो मेरी औलाद को कुछ भी न करे, बदले में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो मुझे डरता हुआ देखकर काफ़ी खुश हो गई थी और हंसने लगी कि मैं उसकी बातों में आ गई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि किस हद तक जाएगी और कब तक इस झूठ का सहारा लेके लोगों को और अपने शौहर को बेवकूफ़ बनाएगी। पर मैंने अहद कर लिया था कि जो बुरा करे उसके साथ होता है और देवरानी भी एक दिन ज़रूर पछताएगी। पर अपनी औलाद की वजह से मैं चुप रही। इसने अपना सारा एहतमाम कर लिया था कि कब वो सबको औलाद की खुशखबरी देगी। उसने सबको बताया कि दाई ने उसे बेटे की खुशखबरी सुनाई है। सारे बहुत खुश हुए थे, पर मैं जानती थी कि ये सब झूठ है, इसलिए मैं इस खुशी में शामिल नहीं होना चाहती थी। उसने सबको मना कर दिया था कि वो दाई के पास खुद जाएगी और जब बच्चा हो जाएगा तो सबको बुला लेगी। मैं जान गई थी कि बच्चे का इसने कहीं से बंदोबस्त करवाया है। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन जब अपनी औलाद को अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखती तो मैं बेबस हो जाती थी और दिल पर पत्थर रखकर चुप साध लेती थी। कुछ देर बाद वो घर वापस आई तो उसकी गोद में नौमौलूद बच्चा था। मुझे हैरत का झटका लगा कि अब ये बच्चा किसका होगा।
इन माँ बाप का क्या हाल होगा जिसका ये बच्चा उठाया है। मैंने सोच लिया था कि इसे समझाऊंगी कि ये सब गुनाह है। वो अपनी खुशी की खातिर किसी दूसरों की खुशी की दुश्मन नहीं बन सकती है। मैंने उससे पहले अपने बच्चे को निमरा के साथ छोड़ दिया था ताकि वो महफूज रहे। वो और उमर इस बच्चे के साथ बहुत खुश थे। मैंने उन्हें खुश देखा तो रुक गई थी, पर इस बच्चे की खातिर मैं उनके रूम में दाखिल हुई और उमर बाहर जा चुका था। जब देवरानी बहुत खुश हुई थी, मुझे कहने लगी कि देखो मेरा मुंह बंद होने की वजह से सब कितने खुश हो गए हैं और मैं आगे भी इस तरह चुप ही रहूं। पर मैंने देवरानी को इधर ही रोक दिया था कि आगे वो कुछ न बोले। मैंने उसको इस छोटे बच्चे के माँ बाप का एहसास दिलाया कि उन पर क्या बीती होगी जब उसने ये बच्चा छीना होगा। तो वो शौक हो गई थी और कहने लगी थी कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, इसने किसी से कोई बच्चा नहीं छीना है। मैंने उससे पूछा कि अगर ये बात सच है तो ये बच्चा उसे कहाँ से मिला, तो वो मुझे चुप करवाने लगी थी। पर मैंने उसे धमकी दे दी थी कि अगर उसने मुझे नहीं बताया तो मैं सबको सच सच बता दूंगी कि वो मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इस पर वो कहने लगी कि वो बुरी है, पर इतनी भी बुरी नहीं कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी से वो खुशी छीन ले। वो उससे कभी नहीं मिल सकती है। मैं समझ गई थी कि वो औलाद की बात ही कर रही है, पर मैंने उसे समझाया कि वो थोड़ा सब्र करती तो क्या पता कुदरत उसे अपनी औलाद से नवाज देती और उसे सबको धोखा में ना रखना पड़ता। पर वो कहने लगी कि ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। इस बात पर मैं शौक हो गई थी। मुझे इस बात पर हमदर्दी होने लगी थी, लेकिन उसने भी अच्छा नहीं किया था। मैंने उस बच्चे की जानिब देखा जो सुकून की नींद सो रहा था। इस पर वो मेरा इशारा समझते हुए मुझे बताने लगी थी कि उसके अम्मी अब्बू का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट में हो गया था और ये बच्चा 10 दिन का है। मुझे उसने ये दूसरा शौक दिया था। मेरी आंखें भीग गई थीं, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसने झूठ का सहारा क्यों लिया है। उसने इस बात पर मुझे यही बताया कि उसने शुतुरमुर्ग पहले रख लिया था और बाद में पता चला था कि वो माँ नहीं बन सकती। मैंने उससे कहा कि अभी भी वक्त नहीं गया, वो सब घर वालों को सब कुछ बता सकती है। पर वो मुझ पर चिल्लाने लगी थी कि मैं ये चाहती हूँ कि सब घर वाले उसके खिलाफ हो जाएं और उसका शौहर इस बात पर उसे घर से निकाल दे या फिर अपनी ज़िंदगी से ही बेदखल कर दे। मैं उसकी सोच पर हैरान हुई थी। मैंने उसे आराम से समझाया था कि ये सच आज ना सही कभी ना कभी सबके सामने आएगा। उस वक्त और भी देर हो जाएगी, इसलिए सब जल्दी सबको पता चल जाए उतना बेहतर है। उसे मेरी बात की समझ लग गई थी। मैंने उसका साथ देने का सोचा और ये भी उसे कह दिया कि वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। मैं अब सोचने लगी थी। मुझे यही ख्याल आया कि सबसे पहले निमरा को ये बात बतानी चाहिए। मैं निमरा के पास गई। वो बहुत खुश थी और अपनी तैयारियों में बिजी थी। उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी, पर मुझे उदास देखकर वो मुझसे पूछने लगी कि मेरी उदासी का क्या सबब है। मैंने उसे बताया कि मुझे एक बहुत बड़ा सच उसके सामने रखना है जिसके लिए उसे सब्र व तहम्मुल से सुनना होगा। वो भी शौक हो गई थी और मुझसे पूछने लगी कि सब खैरियत तो है ना। मैंने जैसे ही उसे बताया कि वो बच्चा उमर भाई का नहीं है तो वो शौक हो गई थी और अपनी भाभी के बारे में गलत सोचने लगी। कहने लगी थी कि वो पहले से उस पर शक करती थी, लेकिन मैंने उसकी सोच को रोक दिया था कि वो इतनी बुरी नहीं है। वो पूछने लगी थी कि वो बच्चा किसका है, तो मैंने उसे सारी बात बतानी शुरू कर दी। वो भी शौक हो गई थी और ये मानने से इनकार कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उससे मना किया था कि वो अभी ये सब किसी को नहीं बताएगी। अचानक ही बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो हम दोनों चौंक गईं, क्योंकि बाहर उमर खड़ा सारी बातें सुन चुका था और इसका रंग उड़ चुका था। वो फौरन ही अपने रूम में जा रहा था। मुझे अनहोनी का एहसास हुआ और अफसोस हुआ था कि उमर ने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। वो अपनी बीवी के साथ न जाने क्या करेगा। कुछ देर बाद ही देवरानी की आवाज़ें आ रही थीं और उमर उसके साथ ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। सब घर वालों को मालूम हो गया। अली भी काफ़ी हैरान हुए थे कि इतना कुछ हो गया और किसी को पता नहीं चला था। सब ने मुझसे भी मूड बना लिया था कि मैंने किसी को क्यों नहीं बताया, जबकि मैं ये सब जानती भी थी। लेकिन मैंने ये बात किसी से भी नहीं कही कि देवरानी ने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। देवरानी अब अपने मैके शहर चली गई थी। उमर ने इनकार कर दिया था कि वो इस बच्चे को कभी अपना बच्चा नहीं समझेगा और वो तलाक की धमकी भी देने लगा था। पर मेरे ससुर ने रोक लिया कि बहू घर की इज्जत होती है और मसला आराम से हल करना चाहिए। मुझे उनकी बात काफ़ी अच्छी लगी थी। मेरे शौहर मुझसे नाराज़ होने लगे कि मैंने उनसे ये बात छुपाई है। अब मुझे लग रहा था कि मुझे बता देना चाहिए कि मैंने ये सब उनसे क्यों छुपाया था। और एक रात मैंने उनसे कह दिया कि अगर मैं अपने बच्चे की वजह से इस बात से ना बंधी होती तो ये सब घर वालों को बता देती। मेरे शौहर भी हैरान हो गए थे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उमर भी काफ़ी परेशान रहता था। उसने एक शर्त रख दी थी कि देवरानी वापस आ सकती है, पर इस बच्चे की कोई जगह नहीं है। लेकिन देवरानी ने इनकार कर दिया था और उमर को साफ साफ कहा कि वो बच्चा अब उसकी जान बन गया है और उसे अपने खून से भी प्यारा है।
वो इस बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो इस बच्चे की माँ है और माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। अगर उसने जन्म नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एहसास भी नहीं रख सकती है। उमर ने भी ठान लिया था कि अब अपने मैके ही रहेगी। इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया और निम्रा की शादी भी इसी बात की वजह से लेट हो चुकी थी क्योंकि ससुर यही चाहते थे कि बेटी की शादी पर किसी किस्म का कोई इशू न बने और बहू भी घर आ जाए। पर उमर अभी भी अपनी शर्त पर कायम था। मुझे निम्रा की काफ़ी फिक्र होने लगी थी कि उसकी शादी लेट हो गई। उसके भाई की अना की वजह से उसकी शादी रुक रही है। शादी 2 माह पहले हो जानी थी, सारी तैयारी भी मुकम्मल थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरा बच्चा भी 1 साल का हो चुका था। इसकी सालगिरह थी और मुझे यही लगा था कि इतने दिनों के बाद एक ऐसा मौका आया है जिस पर सब इकट्ठे एक साथ होंगे। मैंने देवरानी को भी दावत दी थी। वो मुझसे काफ़ी नाराज़ थी, लेकिन मुझे यही लगा था कि अब शायद उसकी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी होगी। उसने यही शर्त रखी थी कि उसके साथ उसका बच्चा भी होगा। मुझे इस बात पर कोई इश्यू नहीं था, मैं मान गई थी और इस तरह मेरे असलान की पहली सालगिरह हो गई थी। देवरानी ने इस बच्चे का नाम महद रखा था। उमर ने जब अपनी बीवी को इस बच्चे के साथ देखा तो उसका पारा एकदम से हाई हो गया। वो वापस अपने रूम में चला गया, लेकिन देवरानी अपने पूरे वक्त के बाद ही वापस गई थी। कुछ दिन के बाद घर में एक और परेशानी फैल गई थी और निम्रा काफ़ी परेशान हो गई थी। उसकी यही वजह थी कि उसके ससुराल वालों ने एक तारीख दे दी थी कि उसके आगे वो और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। मैंने उमर को समझाने की कोशिश की थी ताकि इस बात की समझ आ सके कि कैसे उसके एक फैसले से उसकी बहन की ज़िंदगी जुड़ी है। उमर ने मेरी बात समझ ली थी और वो तैयार हो गया था कि देवरानी मोहित के साथ घर आ सकती है। कुछ दिनों के बाद देवरानी वापस आ गई। अजलान के साथ भी उसका हम उमर खेलने वाला था। वो भी खुश हो गया था। घर वालों ने काफ़ी कोशिश की थी कि उमर की बीवी के साथ अच्छा रवैया रखे ताकि उसे कुछ महसूस ना हो सके। उमर मोहित को एक नज़र भी नहीं देखता था। निम्रा का भी यही हाल हो रहा था, पर मैंने निम्रा को समझाया था कि अगर वो ऐसा करेगी तो उमर उससे भी ज़्यादा करेगा और इस सब में इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। प्यार करना उसका हक है, इसलिए सबको ही चाहिए कि सब उसे प्यार दें। कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो गई थी। वो अपनी रुखसती पर बहुत रोई थी। मुझे भी हम दोनों की दोस्ती याद आती थी। मैंने उसे ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। उसने अजलान को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और अपने ससुराल चली गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी। उमर और उसकी बीवी के दरमियान भी आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने लगा था। मुझे भी इस बात की खुशी थी। अजलान और मोहित की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों मिलकर पूरे घर की खामोशी को रौनक में बदल देते थे और सबको ही इकट्ठा कर देते थे। लेकिन एक दिन कुछ साल बाद की बात है, जब मोहित ने शुरू का बोलना सीखा और वो एक एक लफ्ज़ बोलता था, अचानक ही उसने उमर को बाबा बोल दिया, जिस पर उमर को काफ़ी गुस्सा आया था। इस वक्त देवरानी अपने रूम में थी। उसने ये सब नहीं देखा था। उमर ने मोहित को उठाया और घर के बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो वो अकेला था। सब घर वाले परेशान थे कि वो मोहित को कहाँ छोड़ आया है। इस पर देवरानी भी चीखने लगी थी। उसने अजलान को अपने पास कर लिया था और धमकी देने लगी कि वो अजलान को नुकसान पहुंचा देगी। मैं भी शौक हो गई थी और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये सब इतना अचानक हुआ था, इतने अरसे से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक ही बच्चे का बाबा बोलने पर उमर को बुरा लग गया था, जिसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन इस बार अली भी पीछे न बैठे और मैदान में उतर आए थे। उमर के बड़े भाई होने की वजह से उन्होंने उमर को थप्पड़ मारा और उससे कहा था कि अगर इस्लान को कुछ भी हुआ तो वो उमर का हश्र बिगाड़ देगा। इसलिए उमर ने फ़ौरन ही बता दिया था कि वो मोहित को उसकी जगह पर छोड़ आया है। अली ने उससे पूछा तो उसने एक यतीम खाने का नाम बताया। अली ने देवरानी से कह दिया था कि वो मोहित को आधे घंटे के अंदर ही लेकर आएगा, लेकिन वो इस्लान को छोड़ दे। इस्लान काफ़ी रो रहा था। मैंने उसको अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया था। मैं भी रोने लगी थी। कुछ देर बाद ही अली मोहित को लेकर वापस आए थे और उसे देवरानी को दे दिया। देवरानी की भी यही हालत थी, जैसे उनकी अपनी औलाद उनसे छिन गई हो। अब जब वापस मिली थी तो तड़प कर उसने अपने सीने से लगाया था। सब घर वाले उमर से नाराज़ हो गए थे कि कैसे वो अपना गुस्सा इस मासूम बच्चे पर निकालता है। उमर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब वो अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता था, पर वो इसकी कोई बात नहीं सुनती थी। देवरानी को यही लगता था कि उसने हर हद पार की है और अब उससे बात करना फजूल है। उमर अब मोहित का खर्चा भी उठाने लगा था। कुछ अरसे के बाद दोनों बच्चे ही स्कूल जाने लगे थे। हमने दोनों को एक ही स्कूल में करवाया था और दोनों बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। निम्रा अपने शौहर के साथ काफ़ी खुश थी और शादी के कुछ अरसे बाद ही वो बाहर मुल्क चली गई और छुट्टियां एंजॉय करने लगी थी। इसके शौहर की जॉब थी। कुछ देर बाद वो वापस आ गए थे। मेरी उससे रोज़ाना बातचीत होती थी और इस तरह हम दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात भी शेयर करते रहते थे और महीने में एक दफ़ा सबसे मिलने भी आ जाया करती थी और 2 रात रह कर जाती थी।
कुछ दिन के बाद उससे भी औलाद की खुशखबरी हुई और कुदरत ने उसे बेटी से नवाजा था जो देखने में बिल्कुल उसी की तरह थी। मुझे उसकी बेटी के साथ बहुत लगाव हो गया था और इस्लान को भी छोटे बच्चों से बहुत लगाव था। इसी वजह से वो इसे अपनी गुड़िया कहता था। इन बच्चों की दोस्ती देखकर हम सबके दिल खुश हो जाते थे और दिल से यही दुआ निकलती थी कि बड़े होकर भी इन सब में ऐसे ही प्यार कायम रहे। निम्रा का शहर में घर था, इस वजह से उसने अपनी बेटी को शहर के स्कूल दाखिल करवाया था। ये देखकर अली की भी ख्वाहिश हुई थी कि इस्लान भी शहर के स्कूल पढ़ाई करे। इस तरह काफ़ी सोच विचार करने पर सबने मिल बैठकर ये फैसला किया कि हमें गांव को खैराबाद कह देना चाहिए और इधर कुछ ऐसे नौकर रख देने चाहिए जो यहाँ देखभाल करें और ख़ुद शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। इस तरह हम लोगों ने गांव छोड़कर शहर शिफ्ट होने का फैसला किया और इस्लान और मोहित को भी इसी स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वो तीनों ही इकट्ठे पढ़ाई करते थे। जबकि शहर शिफ्ट होने का एक ये फ़ायदा हुआ कि अब निम्रा हर हफ्ते मुझसे मिलने आ जाया करती थी। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी थी और यही दुआ करती थी कि आगे जाकर भी हमारी दोस्ती कायम रहे और इसमें किसी किस्म की कमी ना आए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।